نون لیگ کے 3 بڑوں کی ملاقات، وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کی بیٹھک۔ پارٹی قائد نے شہباز شریف کو اتحادیوں سے اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان رابطوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت بھی متوقع ہے۔ نون لیگ کے 3 بڑوں نے ملک کی سیاسی اور بین الاقوامی صورتحال پر صلاح مشورے کیے۔ لاہور سے عباس نقوی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ جاتی عمرہ میں نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھک، پارٹی صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہم نشست۔ ملک کی سیاسی اور بین الاقوامی صورتحال پر صلاح مشورے ہوئے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے وزیر اعظم کو ہدایت کی کہ حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی قائد کو پیپلز پارٹی کے تحفظات پر اتحادی جماعت کی قیادت سے رابطوں کے متعلق بھی آگاہ کیا۔ آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات پر بھی بریفنگ دی۔ بیرون ملک دوروں، پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں اور معاہدوں سے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا، کشمیر ہماری شارک ہے، حکومت کشمیریوں کے جائز مطالبات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ پاک سعودی معاہدے کے بعد مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ قبلہ اول کی حفاظت، فلسطینیوں کی حمایت اور قیام امن کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کے مثبت نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ عباس نقوی، سمان لاہور۔ پاکستان نے آپریشن بنیانو مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار فورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبران سے خطاب۔ کہا، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ گڈ گورننس، درست پالیسیز اور سخت محنت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ پنجاب کو ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مدد کی گئی۔ عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کے کیسز واپس لینے کا فیصلہ۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل کا کہنا ہے کہ کے پی میں 9 مئی کے 29 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے مقدمات واپسی کی منظوری لی۔ عدالت نے کیس واپس لینے پر دلائل کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ دی ہے۔ 9 مئی 2023 کو 29 فالس کیسز اینٹی ٹیررزم کورٹ کے بنائے گئے تھے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، لیک آف ایویڈنس اور مس یوز آف اتھارٹی پر بیس تھے۔ اس کا نوٹس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے لیا۔ انہوں نے تھرو سرکولیشن کیبنٹ ڈیسیژن دیا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیسز وڈرا کرے، اور محمد انعام یوسفزئی صاحب جو ہے ان کو اسپیشل پروسیکیوٹر اس میں اپوائنٹ کیا گیا۔ اور آج محمد انعام یوسفزئی صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے یہ تمام ڈاکیومنٹس عدالت میں جمع کیے۔ عدالت نے ان تمام ڈاکیومنٹس کا بغور مطالعہ کیا اور پھر اس میں 15 اکتوبر کی تاریخ دے دی وڈرال پہ آرگومنٹ سننے کے لیے۔ وفاقی وزراء کی کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، الصبح معاہدہ طے پا گیا۔ آزاد کشمیر کی کابینہ میں وزراء اور سیکریٹریز کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی۔ مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر کمیٹی قائم، ہیلتھ کارڈ کے فنڈز 15 روز میں جاری کیے جائیں گے۔ ہر ضلع میں MRI اور CT اسکین مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی۔ وفاقی وزراء نے معاہدے کے نکات سوشل میڈیا پر جاری کر دیے۔ کشمیر میں احتجاجی تحریک کے خاتمے کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات میں ہونے والی اموات پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو اہلکاروں کے مساوی مالی فوائد ملیں گے۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق دوران احتجاج جاں بحق افراد کے اہل خانہ میں سے ایک فرد کو 20 دن کے اندر سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ مظفر آباد اور پونچھ میں 2 نئے تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور تمام بورڈز کو وفاقی بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ منگلا ڈیم منصوبے سے متاثرہ خاندانوں کی اراضی کے قبضے 30 دن میں باقاعدہ ہوں گے۔ ہیلتھ کارڈ کے فنڈز 15 دن میں جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی، جبکہ ہر ضلع کو مرحلہ وار MRI اور CT اسکین مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ کشمیر کابینہ میں وزراء اور محکموں کے سیکرٹریز کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی۔ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن کو ضم کیا جائے گا اور احتساب ایکٹ کو حکومت پاکستان کے نیب قوانین سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ وادی نیلم روڈ پر 2 سرنگوں کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی جائے گی، جبکہ مہاجرین کی نشستوں پر نظرثانی کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم کی جائے
जमाएगी जिसमें वफाक, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दो माहिरीन शामिल होंगे। कमेटी की हतमी रिपोर्ट आने तक मौजूदा इंतजाम के तहत इन MLAs की मराद, फंड्स और हासिल रियायतें मुअत्तल रहेंगी। मुआहदे की इजाफी निकात के मुताबिक मंजोसा, मुजफ्फराबाद, धीरकोट और दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल अदालती कमीशन करेगा। मीरपुर एयरपोर्ट के टाइम फ्रेम का ऐलान रवां माली साल में मुतवक्के है। जायदाद टैक्स 3 माह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा, जबकि वाटर स्कीम, अस्पतालों और तालीमी इदारों के मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद आज़ाद कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी अरकान की इस्लामाबाद वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये मुल्क हम सबका है, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में खून बहने पर अफसोस है, मुआहदे की शक्ल में फौरी हल निकाल लिया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ हमारी बातचीत कामयाब हुई और आज़ाद कश्मीर में अमन वापस बहाल हुआ। वज़ीर आज़म के बिहाफ पे जो है वो उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला उनके जो तालीम से मुतल्लिक़ा मामलात हैं, जो हेल्थ से मुतल्लिक़ा फैसिलिटीज़ हैं, वो इंशाअल्लाह उनको जो है वो बहम पहुँचाई जाएंगी और जो उनके मुतालबात में कोई आइनी और कानूनी पहलू थे तो उसके ऊपर एक लीगल एक्सपर्ट्स की जो है वो कमेटी बना दी गई है। जो चीज़ें अवामी मफाद में थी, कश्मीर के लोगों के फ़ायदे में थी और वो फ़ौरन हो सकती थी, वो फ़ौरन कर देगी। ये मुल्क हम सब का है। अब फौरी हल है उनके कुछ मुतालबात की शक्ल में जो एक मुआहदे की सूरत में लिखा गया है और कोशिश ये होगी कि वो क्विकली जितनी जल्दी मुमकिन इखलास के साथ उस पर अमल दरामद हो जाए और उसके मेकनिज़म के लिए भी, उसके फॉलोअप के लिए भी जो कमेटी तश्कील दी गई है वो 15 रोज़ा मीटिंग उसकी होंगी। आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। शौकत नवाज मीर ने कहा कि हम तमाम मामलात खुद हल कर सकते हैं, किसी बैरूनी ताकत को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। दोनों साइड से नीयत ठीक थी, हमारे मुज़ाकरात दोबारा रिस्टोर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे और हमारी तकरीबन चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल में उनका शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, कई चीज़ों में ओवर रूल हुआ, हमने उसका बरमला इज़हार भी किया, लेकिन जब चीज़ों को एडमिट किया गया तो फौरी तौर पे उस पर रिएक्शन देते हुए इन चीज़ों को जो अनरेस्ट था रियासत के अंदर उसको ख़त्म करने में उन्होंने इदारों ने और उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारा अपना अंदरूनी मामला, इसके अंदर किसी मुल्क को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेहतर जानते हैं कि हम अपने मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात, 6 रोज़ बाद हड़ताल ख़त्म हो गई, तिजारती सरगर्मियाँ बहाल, गाड़ियों का पहिया भी चल पड़ा। मीरपुर में क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान अकरम से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 6 रोज़ बाद तवील लॉकडाउन के बाद आज दोबारा जो ज़िंदगी है अब मामूल पर आना शुरू हो गई है। बहुत सारे कारोबार भी ओपन हो गए हैं। आज दिन तकरीबन 2 बजे मोबाइल सर्विस भी ओपन हो गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी और पाकिस्तान के जो वज़रा की एक कमेटी आई थी उनके दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिन पर कुछ चीज़ों पर जो है कि कमेटियाँ बना दी गई हैं जो आइंदा हर 15 दिन बाद एक कमेटी का इजलास किया करेंगी, ताकि जो मामलात थे जॉइंट एक्शन कमेटी को उनको भरपूर तरीके से देखा जा सके। कारोबार ज़िंदगी अब दोबारा मामूल की तरफ आना शुरू हो गए हैं। ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं कि किस तरह रवां दवां जारी है और बहुत सारे जो लोगों के गुज़श्ता 6 रोज़ से बिजनेस बंद थे वो भी अब खुल गए हैं। जी भिंबर आज़ाद कश्मीर में 7वें रोज़ मामूलाती ज़िंदगी बहाल, तमाम दुकानें और मराकज़ खुल गए, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस को भी बहाल कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद हुसैन राजा से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जाने से भेजे गए वफद और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद आज़ाद कश्मीर बार की तरह बिंबर, बरनाला, उस्मानी कोटली, बहादुर में भी आज तमाम जो छोटी बड़ी मार्केट हैं वो मामूल के मुताबिक ऊपर रही है। पिछले 6 दिन से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की शदीद हड़ताल के बायस तमाम जो छोटे बड़े मराकज़ के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो निजी प्राइवेट अदारे हैं वो भी बंद थे, लेकिन आज मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद तमाम जो मार्केट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने रूट पर रवाना है। कश्मीरी अवाम ने खास करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफद भेजने पे और कामयाब मुज़ाकरात करने पे शुक्रिया अदा किया है।
बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। हुकूमती और जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन का क़याम खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गई हैं, तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो गए। हुकूमत कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से भी अपील की है कि वो अफवाहों का कान न धरें। माजी की तरह कश्मीरी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गजा में अमन की कोशिशें रंग ले आईं। सदर ट्रंप के 20 निकाती प्लान पर हमास का मस्बत रद्द-ए-अमल आ गया। मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि तमाम जिंदा कैदियों और लाशों की वापसी के लिए तैयार हैं। ज़मीनी हालात साजगार होने पर तबादला होगा। गजा के इंतज़ामी अमूर गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को मुंतकिल करेंगे। फैसला कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब इस्लामिक ममालिक की मुशावरत से होगा। मुकम्मल इसराइली इनख़ला से पहले हथियार नहीं डालेंगे। सालिसों के ज़रिए फ़ौरी मुज़ाकरात में शामिल होने पर रज़ामंदी का इजहार किया। जंगबंदी के ऐलान से गजा के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुतासरीन का कहना है कि वो जंग, दरबदरी और भूख से तंग आ चुके हैं। अल्लाह करे कि ये जंगबंदी कायम रहे, तमाम कैदी रिहा हों और हम अपने घरों को लौट सकें। हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी बमबारी रोकनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। वीडियो पैगाम में कहा कि मुआहदे की तफसीलात पर पहले ही बातचीत जारी है। आज बहुत बड़ा दिन है। सब चाहते थे ये जंग खत्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन आए। जंगबंदी और अमन की बातें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को हज़म न हो सकीं। इंतहा पसंदों के हाथों मजबूर नेतन्याहू ने ट्रंप इंतज़ामिया से ताउन करने का बयान डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि वो जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। चंद घंटे बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के एक्स अकाउंट से बयान हटा दिया गया। आलमी रहनुमाओं का हमास के मुस्बत जवाब का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अमन के क़याम के लिए फैसला कुन मौका है। बरतानिया और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में अमन के लिए आगे बढ़ने पर जोर दिया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि कैदियों की रिहाई पर आमादगी खुश आइंद बात है। अब फौरी जंगबंदी करके इमदादी सरगर्मियाँ बहाल की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने जंग ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म ने अमन फार्मूले को नामुकम्मल करार दे दिया। कहा कि अरब और मुस्लिम ममालिक तमाम शिकों से मुत्तफ़िक नहीं हैं। खूनरेज़ी और जबरी बेदखली रोकने के लिए प्लान की हिमायत की, जबकि तुर्की, मिस्र, कतर, इटली और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने भी गजा में क़याम अमन की जानिब मुस्बत पेशरफ्त को सराहा है। लंदन में गजा की मजलूम अवाम से यकजहती के लिए एहतजाज। लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज में फ़लस्तीन एक्शन कमेटी के अरकान भी शरीक थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और पुलिस की जानिब से शहरियों से एहतजाज मौखर करने की अपील की गई है। स्पेन में भी फ़लस्तीनियों के हक में अवाम ने रैली निकाली और इसराइली हमले बंद कराने का मुतालबा किया। आज़म शहबाज शरीफ गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा हमास का बयान बेहतरी का इशारा है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मौका ज़ाया न किया जाए। ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमेशा की तरह फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते गजा में फ़ौरी और पायदार जंगबंदी के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर कायम होनी चाहिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। गजा में इसराइली जहरियत रुकवाने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए आलमी कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जंगबंदी की रोशन किरण नजर आने लगी। कहा हमास के हालिया बयान ने नई अमन कोशिशों को तक़वियत दी है। अमरीकी सदर ट्रंप और मुस्लिम रहनुमाओं के किरदार को सराहते हुए कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इन तमाम ममालिक की क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा में जंगबंदी की हिमायत की। हमें इस मौका को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीन में पायदार अमन हमारा मुश्तरका मकसद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सिफारती कोशिशें भी मज़ीद तेज। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के साथ टेलीफोनिक राब्ते। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते के मजमूई हालात ख़ुसूसन गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी ममालिक और अमरीकी हुक्काम की मुशावरत को सराहते हुए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने के अज़म का एआदा किया गया। इंसानी इमदाद की बिला तातुल तरसील और जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। वाज़ेह किया गया कि दो रियासती हल खित्ते में मुनसिफाना और
और पायदार अमन की वाहिद ज़मान। दफ्तर खारजा ने भी अमरीकी सदर के अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम किया। कहा कि ये बयान जंग बंदी और खून रेजी के खात्मे का अहम मौका फराहम करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत 1967 की सरहदों पर कायम होनी चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो।